Hello students, we'll start with a new chapter today. Mensuration, that is area and volume of solids. Which solids? Cone, cylinder, sphere, cylinders, cones and spheres. Cylinders and cones are important. First we'll understand what a cylinder is. Cylinder. See, a cylinder has a circle in the top. This is the body of the cylinder, and it has another circle in the bottom. These two circles which are there in the top and at the bottom are identical circles. If we join the center of these two circles, I can say this is the height of the cylinder. Okay, or these 3 points are aligned. So I can even say that this is the height of the circle, or even this can be said as the height of the cylinder. This height and this height is same. This is called as the height of the cylinder. Okay, here the circle, in this circle, this is the center of the circle. So this distance from here, this distance is called as the radius of the cylinder. This is called as the radius of the cylinder. Even this distance is called as the radius of the cylinder. Both are same. You can take any radius. Okay. Now we need to know certain formulas. For cylinder, first we need to know the curved surface area, then the total surface area, and the volume. Curved surface area, total surface area and the volume. These three formulas we need to know. Okay. Now what is curved surface area? See, if I take this, let's say I take this box. Okay, it's in a shape of a cylinder, you can see. Okay, just ignore this part. The top and the bottom are same type of circles. Okay, so this is a circle you can see here, and this is also a circle. Okay, and this is the height of the cylinder. From here to here is the height of the cylinder, like this. This is the height of the cylinder. Now curved surface area. Now what is surface area? First of all, surface area means this is the surface of the cylinder. This part is the surface, this part is the surface, and this is the surface. Let's say if I ask you to color this cylinder, you will color this part first, then you will color here, and you will color here. This is the total surface area of the cylinder. ये total पूरा, जहाँ पे ये वाला part भी include हो गया, and this part is include. So that is the total surface area of the cylinder. What is curved surface then? See, curved means only this part. Only this part of the cylinder is curved surface area. Because these two parts, this is a flat part of the cylinder. Flat, ये flat है, ये भी flat है. सिर्फ ये part curved है cylinder का. Okay, so इस part का area, मतलब अगर मुझे इस part को color करना है, या मुझे इस पार्ट को कवर करना है पेपर से, तो मुझे कितना पेपर चाहिए, मुझे कितना कलर चाहिए इसको पूरा कवर करने के लिए. ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट को पूरा कवर करने के लिए. ओके, दिस कर्व्ड पार्ट, दिस एंटायर कर्व्ड पार्ट, इफ आई हैव टू कलर और इफ आई हैव टू कवर, तो मुझे कितना मटेरियल यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट? दैट इज कॉल्ड एज द कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, एंड द फॉर्मूला इज 2 pi r h. Always remember pi is 22/7
unless it is specified in the question that it is 3.4, always take 22/7. If it is specified in the question, take 3.14. Okay, 2 pi r. Now before that, one more thing I want to tell you, that what is the about the circle, about any circle, two things you should know: the area of the circle and the circumference of the circle. This is a circle. Area means this part, ये पूरा. This is called as the area of circle, जिसका formula है pi r square. This is the area of circle. And circumference means ये length, this boundary. ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक वायर रखा, उसको घुमाया ऐसे पूरा और यहाँ तक लाया, तो ये लेंथ कितना है, ये बाउंड्री कितना है, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय 2 pi r. These two formulas are important. Note down these formulas. Area of circle is pi r square. Circumference of a circle is 2 pi r. 2 pi r. R is the radius of the circle. R is the radius of the circle. Okay. So ये curved surface area का formula को ऐसे भी याद रख सकते हैं, that 2 pi r is circumference into height कर दिया. जैसे for example अगर ये circle है तो इसका circumference है 2 pi r और उसको height से multiply किया तो 2 pi r h मिलता है. Or else you can directly learn the formulas, because exam में आप derive नहीं कर सकते formulas, you have to by heart it. So this is the formula for curved surface area. Okay. अब ये तो हो गया curved surface area. ठीक है, मैंने ये वाला एरिया ले लिया. अब क्या, कौन सा एरिया बच गया है, ये वाला और ये वाला बच गया. ठीक है, दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल. ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. सो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में इफ आई ऐड 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों एरियाज को अगर मैंने ऐड किया इसके साथ तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा. करेक्ट. सो ये जो कर्व्ड पार्ट है, दिस इज द कर्व्ड पार्ट. इस कर्व पार्ट में अगर मैंने ये दोनों एरियाज को ऐड कर दिया तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया. ओके. सो कर्व्ड पार्ट इज 2 पाई आर एच, जो मैंने अभी लिखा फॉर्मूला, प्लस इसके अंदर मैंने ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 बार पाई आर स्क्वायर ऐड किया. ओके. सो अगर मैं इसको डिराइव करूँ, ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई कैन टेक 2 पाई आर कॉमन ईयर, तो बचेगा आर एच प्लस आर. So this is the formula for total surface area of a cylinder. क्या है formula? 2 pi r h plus r in the bracket. 2 pi r h plus r in the bracket. Understood? और ये है formula curved surface area का. Curved surface area, total surface area. अंडरस्टूड. कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर. कैसे आया मैंने वो भी बताया आपको. ठीक है, थोड़ा क्योंकि ये कभी कभी यूज़ हो सकता है सम के अंदर, इसलिए बेटर यू नो टोटल सरफेस एरिया. सी अभी एरिया क्यों क्या था, ये बाहर का पार्ट था, कलर करना है, कवर करना है, तो एरिया काम आता है. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, देन वी कम टू वॉल्यूम. वॉल्यूम मीन्स सिलेंडर के अंदर आप कितना चीज़ स्टोर कर सकते हो. ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम. इससे कोई बाहर से कोई लेन देन नहीं है. वॉल्यूम मीन्स द कैपेसिटी, लाइक इफ यू आर फिलिंग इट विद वाटर, इफ यू आर फिलिंग इट विद अल्कोहल, इफ यू आर फिलिंग इट विद सॉलिड, एनीथिंग, सैंड, आइसक्रीम, ऐसे अलग अलग चीज़ें आएगी सम्स में. सो कैपेसिटी कितनी है इसकी, ये कितना चीज़ अंदर भर सकते हैं इसकी, that is called as the volume. And volume का formula is, for a cylinder it is pi r square h. okay, pi r square circle का एरिया होता है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया, that is pi r square h. okay. So the third formula is of volume. So 1, 2, 3. 3 important formulas in this part. Cylinder का curved surface area, total surface area and volume. Okay.
So note down these three formulas. You can write it anywhere where you can easily accessible to you. और ये एक extra knowledge है, although ये आपने 9th standard में पढ़ा है, but still, what is circumference, what is area? You should know that. Copied? Now, one more formula for a hollow cylinder. Although एग्ज़ाम में hollow cylinder के सम्स बहुत ही कम आते हैं, आते भी नहीं है कई बार तो, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2-3 सम्स है एक्सरसाइज में. वी कैन डू दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ hollow cylinder. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. सेम फॉर्मूलाज ही है, सिर्फ वॉल्यूम का ही याद रखना है. ठीक है, ऑल अदर फॉर्मूलाज आर सेम. सो hollow cylinder, सबसे पहले hollow cylinder होता क्या है? व्हाट इज hollow cylinder? सो सी दिस पिक्चर. First, see this image. Just a second. हाँ, see this image. ये एक नॉर्मल सिलेंडर दिख रहा है. ठीक है, ये एक नॉर्मल सिलेंडर. दिस इज कॉल्ड एज सॉलिड सिलेंडर. बट इफ यू सी दिस इमेज, हियर यू कैन सी दैट ये जो सिलेंडर है ये अंदर से खाली है. ठीक है, जो प्रीवियस सिलेंडर था वो पूरा भरा हुआ था, बट ये सिलेंडर अंदर से हॉलो है, अंदर से खाली है. इसमें जो मटेरियल है वो सिर्फ यहाँ पे है बाउंड्री में. ये जो थिकनेस दिख रही है ना यहाँ पे, ये थिकनेस, दिस इज ओनली द मटेरियल. बाकी अंदर से खाली है वो सिलेंडर. मीन्स इफ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस टाइप ऑफ सिलेंडर, सी ये सिलेंडर जो है इट इज समथिंग लाइक दिस. जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मटेरियल है पूरा. दिस इज फुल ऑफ मटेरियल. कोई भी चीज़ होगा, समझो ये स्टील का बना हुआ है तो दिस थिकनेस विल बी मेड अप ऑफ स्टील. दिस थिकनेस विल बी मेड अप ऑफ स्टील. और अंदर से ये खाली है सिलेंडर. ओके, अंदर से ये सिलेंडर खाली है, हॉलो सिलेंडर है. मीन्स इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, तो ये वाला जो अंदर का पार्ट है ये तो आएगा ही नहीं सिलेंडर का, बिकॉज ये तो वॉल्यूम है ही नहीं उसकी, बिकॉज वो खाली है अंदर से. तो इसमें एक्चुअल में जो मटेरियल है, लेट्स से इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील और इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन, तो वो मटेरियल कहाँ पे? यहाँ पे है. ये वाले पूरे पार्ट में मटेरियल है. दिस पार्ट इज आयरन. ये पूरा जो थिकनेस है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन. दिस एंटायर थिकनेस इज मेड अप ऑफ आयरन. करेक्ट. सो अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये वाले पार्ट का निकालना होगा. सो हॉलो सिलेंडर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जस्ट रिमेंबर, volume of hollow cylinder is, see, in this cylinder there are two circles. ये एक सर्कल है अंदर का, इनर सर्कल, और ये एक सर्कल है बाहर का. करेक्ट. दिस इज द इनर सर्कल एंड दिस इज द आउटर सर्कल. ओके. इफ आई वांट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये जो ब्लैक पार्ट जो मैंने शेड किया है उसका वॉल्यूम मुझे अगर चाहिए, ये ब्लैक पार्ट का, तो मैं क्या करूँगा? पहले फुल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूँ और उसमें से ये अंदर वाला जो हॉलो पार्ट है उसे कैंसिल कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. आर यू गेटिंग मी? पहले पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं एंड देन ये छोटे वाला जो सिलेंडर है, ये दिख रहा है, ये वाला छोटा सिलेंडर है अंदर एक. ठीक है, इसके वॉल्यूम को सबट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे, तो फिर ये बचेगा सिर्फ. करेक्ट. जैसे हम सर्कल में 2D फिगर्स के लिए करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू डू, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया path, तो what we do, we calculate the full circle and then we subtract the small circle, तो हमें ये वाला पार्ट मिलता है. वैसे ही अभी सिलेंडर के लिए करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर
अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सो ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर है, फुल सिलेंडर, तो उसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेके बाहर तक. ओके, इफ़ यू वांट आई विल ड्रॉ इट हियर. ये जो इसका टॉप व्यू है, लेट्स ड्रॉ इट हियर. बड़े सिलेंडर का रेडियस होगा r. ओके, और इसके अंदर ये जो छोटा सर्कल है, लेट्स से दिस इज द स्मॉल सर्कल इनसाइड, ये स्मॉल सर्कल है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल r. ओके, सो बड़े सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, सो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज कैपिटल आर. एंड इस पूरे सर्कल में से आई विल सबट्रैक्ट दिस स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल को सबट्रैक्ट करता हूँ. सो माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, बिकॉज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज स्मॉल आर. दिस इज स्मॉल आर. ओके, तो अब इसमें से मैं पाई एच, बिकॉज देखो हाइट दोनों सिलेंडर्स की सेम है, हाइट इज सेम फॉर बोथ द सिलेंडर्स, और पाई तो कांस्टेंट होता है, तो आई कैन टेक पाई कॉमन, एच कॉमन, व्हाट विल आई गेट, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच को लास्ट में लिखता हूँ. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, एच. तो आपको नया क्या पढ़ना है, जब भी ये हॉलो वर्ड आ गया ना, हॉलो वर्ड, ठीक है, तो आपको दो रेडियस आ जाते हैं, एक बड़ा रेडियस, एक छोटा रेडियस. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे फॉर्मूला में आर है ना, उसकी जगह पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देना है. बिगर रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉलर रेडियस स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है फॉर्मूला में. ठीक है, बाकी आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद नहीं भी रहता तो नॉट एन इशू, हमें सिर्फ हॉलो सिलेंडर अगर आ गया क्वेश्चन में. ठीक है, एंड हाउ टू नो हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली दे विल मेंशन दैट इट इज अ हॉलो सिलेंडर एंड दे विल गिव यू 2 रेडियस, तो ही वो हॉलो सिलेंडर होता है, नहीं तो वो नहीं होगा. ठीक है, ये जो छोटा आर है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस स्मॉल आर इज कॉल्ड एज इनर रेडियस, कैपिटल आर इज कॉल्ड एज आउटर रेडियस. ठीक है, कभी कभी हॉलो सिलेंडर का सम नहीं भी होता है, स्टिल दे यूज द वर्ड इनर रेडियस. ठीक है, तो अगर हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन होगा तो दे मस्ट गिव यू 2 रेडियस. और सी दे कैन गिव यू वन मोर थिंग. सी यहाँ पे देखो, ये पूरा आर है फुल रेडियस, और ये है छोटा रेडियस. अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये दैट मीन्स दिस थिकनेस, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस थिकनेस. सी यहाँ पे एक सर्कल है, अनदर सर्कल है, दिस इज कैपिटल आर, इतना डिस्टेंस, एंड दिस इज स्मॉल आर, ये इतना डिस्टेंस. तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो व्हाट विल आई डू, इस बड़े रेडियस में से इस छोटे रेडियस को माइनस करूँगा, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे, तो आई विल गेट दिस थिकनेस. ओके, सो यू कैन राइट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थिकनेस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर. Okay, so note down this formula and note down this part. इतना चीज़ नोट डाउन करो, बाकी ये सब ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत, डेरिवेशन भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ क्या क्या डिफरेंस था फॉर्मूला में, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अगर हॉलो सिलेंडर का सम होगा तो दे विल ईदर गिव यू 2 रेडियस और दे विल गिव यू 1 रेडियस एंड थिकनेस, कुछ तो देंगे. ये 3 चीज़ है, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड थिकनेस. इन तीनों में से 2 चीज़ तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, तो ही वी कैन सॉल्व द सम ऑफ हॉलो सिलेंडर. ओके, मोस्टली दिस विल बी यूज्ड, दिस 3 फॉर्मूलाज. हॉलो सिलेंडर कभी कभी यूज़ होगा, सो फॉर्मूला आपने लिख दिया है अच्छे से. ठीक है, टेक अ सेपरेट पेज एंड राइट द फॉर्मूलाज ऑफ दिस टॉपिक ऑन अ सेपरेट पेज, और वो पेज को हमेशा यूज़ करते रहना सम सॉल्व करते वक्त. ठीक है, इफ़ यू कीप लुकिंग एट दैट फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन, बिकॉज एक पेज पे लिखोगे देन यू विल टर्न द पेज, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा. सो बेटर है टेयर दैट पेज फ्रॉम द बुक एंड कॉपी दिस फॉर्मूलाज, बिकॉज कोन के फॉर्मूलाज भी आएंगे अभी. सो कॉपी दिस फॉर्मूलाज देयर, कीप इट हैंडी, एंड जब भी सम सॉल्व करो कीप रेफरिंग टू देम. ओके, नाउ I have taken a lot of time in explaining you what a cylinder is. Now let's come to the sums.
So first question, very simple one. If the radius of a cylinder is 14 centimeter, so radius is 14 centimeter, height is 10 centimeter, find its volume. So हमें क्या find करना है? Volume of a cylinder formula. Volume of a cylinder का formula क्या है? Just take a look at the list of the formulas. It is pi r square h. Okay, so pi is 22/7 into radius is 14 into 14 into height is 10. Do this calculation, you will get the answer for the volume. Simple sum. Complete this, pause the video and complete it. Generally they give the radius as 14, 21, so that वो 7 के साथ cancel हो जाए. ठीक है. Curved surface area formula is 2 pi r h. Okay, so 2 into pi is 22/7, radius is 14 and height is 10. Do the calculation, you will get the curved surface area also. ठीक है. Now most important part. First complete this. In the first volume, you will get the answer as 6160, and area you will get the answer as 880. ठीक है. Unit is very important here. Volume का unit हमेशा क्यूब में होता है, so this will be centimeter cube, क्योंकि all the values are given in centimeter. And curved surface area is always in square, centimeter square. Okay, curved surface हो या total surface हो, area is always in square, volume is in cube, centimeter cube, centimeter square, or it can be meter cube, meter square. Okay, copy this. Second sum. If the curved surface area of a cylinder is 2750 centimeter square, मतलब curved surface area already दे दिया है. Curved surface area is 2750 centimeter square. I forgot to tell you that we are doing these sums from Frank textbook. Because in Frank textbook the sums are better, nicely organized. So just remember this, exercise 17a. ठीक है. If you have not realized yet, these sums are from the Frank textbook. Okay, so curved surface area दिया है 2750 and the circumference of the base is 110. Circumference word use किया उन्होंने, circumference की वैल्यू दी है. Circumference of the base, base मतलब सिलेंडर का बेस क्या होता है? सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल होता है. सो सर्कमफरेंस ऑफ दैट बेस मतलब सर्कल का सर्कमफरेंस दिया है 110 सेंटीमीटर्स. ओके, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या था? आई हैड गिवन यू द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस. इट इज 2 पाई आर. ओके, सो 2 पाई आर वैल्यू इज गिवन एज 110. ओके, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो क्या करेंगे? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच equals 2 pi RH is what? 2750. ओके, नाउ ध्यान से देखो, ये 2750 सॉरी ये 2 पाई आर जो है उसकी वैल्यू 110 है. सो यहाँ पे भी 2 पाई आर है. ये फर्स्ट 2 पाई आर है, तो इस 2 पाई आर के बदले आई कैन राइट 110. डायरेक्टली यहाँ पे 110 लिख देता हूँ और इंटू एच इक्वल्स 2750. सो एच क्या होगा? 2750 अपॉन 110. And when you cancel this, you will get answer as
25 सेंटीमीटर्स। हाइट क्या मिला? 25 सेंटीमीटर्स। ओके, समझ गया? ये पर्पसली उन्होंने सरकमफरेंस दिया था 110, बिकॉज उनको पता है कि 2πr की वैल्यू 110 बन जाएगी, जो डायरेक्ट वैल्यू हम फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। 2πr कौन से फॉर्मूला में? CSA के फॉर्मूला में। CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, अब नेक्स्ट ढूंढना है वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई इज 22/4। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू तो दी ही नहीं है, बट आर की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? सी हियर 2πr इज 110। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई कैन फाइंड आर। सी 2πr इज 110, so 2 into 22/7 into r is 110. So what will r be? 110 into 7 upon 2 into 22 will come down here. करेक्ट? पहले भी कर सकते थे स्टार्टिंग में ही, बट पहले हमें डायरेक्ट यूज़ करने में फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब हम ढूंढ ले रहे हैं। तो 11 1 जा, 11 2 जा, ओके, 2 1 जा, 2 5 जा, so this will be 35/2. I'm getting r as 35/2. ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। एंड नाउ लेट्स फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू पाई इज गिवन एज, सॉरी, आर इज 35/2। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो बार लिख देता हूँ। 35/2 इंटू व्हाट इज द हाइट? 25। डू द कैलकुलेशन। ये कट होगा 7 1 जा, 7 5 जा, ओके, 2 1 जा, 2 11 जा, सो 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 25/2। When you multiply this 11 into 5 into 35 into 25, you will get 48125 divided by 2. That is 24062 2.5 centimeter cube volume. Pause the video, copy the sum. Next, very interesting question. Next one is a very good question. Now see, the third question, they are asking me a cylindrical glass of 6 centimeter height. So there is a glass, let's say ये glass है ऐसा, of 6 centimeter height and has a radius of 3.5 centimeter. So this radius is 3.5 centimeter. Find the wet surface area of the glass when water is poured into it. क्या ढूंढने बोला है? Wet surface area when water is poured into it. सबसे पहले ये ग्लास है। ग्लास में क्या होता है? ये ऊपर का पार्ट तो होता ही नहीं है ग्लास में, ये वाला पार्ट नहीं होता है ग्लास में, करेक्ट? नीचे बेस होता है, बेस इज देयर, ऊपर का पार्ट नहीं होता है। अब जब मैं इस ग्लास में पानी डालूंगा, यू कैन इमेजिन इफ आई पुट वाटर इन दिस ग्लास, ठीक है, समझो मैंने इसको भर दिया पानी से, पूरा इसको पूरा पानी से भर दिया। उन्होंने बोला है वेट सरफेस एरिया फाइंड करो, मतलब कौन सा पार्ट वेट है ग्लास का। लेट्स इमेजिन दिस इज अ ग्लास, देख रहे हो, जिसमें बेस तो है, ठीक है, बेस इज कवर्ड बट ऊपर से खुला होता है, करेक्ट? अब जब मैं इसके अंदर अगर पानी डालूंगा, इफ आई पुट वाटर इन दिस, तो इसका कौन सा एरिया वेट होगा? व्हेन इसके अंदर पानी डाल देंगे, पूरा भर देंगे पानी से,
सो इसका ये जो पार्ट है पूरा, दिस पार्ट विच इज़ इनसाइड, ये वाला पार्ट जो है, दिस विल बी फुल वेट, करेक्ट। एंड ये जो बॉटम है यहाँ पे, ये बॉटम भी गीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गीला हुआ प्लस ये बॉटम गीला हुआ, तो मुझे इस बॉटम का और ये पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? आई नो दैट दिस इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, करेक्ट। ये जो बाहर का बोलो या अंदर का बोलो, कर्व्ड सरफेस ही होता है। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया, करेक्ट। तो ये वेट सरफेस एरिया इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके, प्लस ये कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला पार्ट कवर हो गया, ये इतना, बट ये बॉटम बाकी है एक, दिस इज ऑल्सो वेट सरफेस एरिया। यहाँ पे भी पानी गिरा है पूरा, जब इस ग्लास को पानी से भर देंगे तो ये वाला पार्ट भी पानी से भर जाएगा, ओके। यू कैन इमेजिन ये नीचे वाला पार्ट, दिस पार्ट। सो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस। सो वेट सरफेस एरिया मुझे कैसा मिला? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ग्लास प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। सो ये अगर मैं फाइंड करूंगा तो आई विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी वेट सरफेस एरिया, ठीक है। व्हाट आर द वैल्यूज मुझे पता है, लेट्स पुट द, यहाँ चाहिए तो कॉमन भी ले सकते हैं कुछ, अगर कॉमन लेना है तो लेट्स से यू कैन टेक पाई आर कॉमन, सो दिस विल बिकम 2h प्लस r, so pi is 22/7, r is 3.5, 2h is 6 plus r is 3.5, so this is 22/7 into 35/10, ठीक है। अब 3.5 को अगर आपको क्लिक होता है अच्छे से, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हो, ये भी आदत अच्छी है 7/2 लिखना। सो दैट क्या होता है, 7/2 लिखो तो 7 सीधा कट हो जाता है, ठीक है। डू दिस कैलकुलेशन। When you do this calculation, you will get the answer as 170.5. This is the wet surface area, ठीक है, वेट सरफेस एरिया, तो इसलिए इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, I hope you have understood the sum. Next one, easy, comparatively easy next sum, but it comes with an important concept of finding the number of cylinders. Okay, now see, a cylindrical shape में जग है of radius 6 centimeter and height 35 centimeter. So एक बहुत बड़ा जग है, ओके, cylindrical shape में, जिसका रेडियस है radius is 6 centimeter and height is 35 centimeter, is full of orange juice. So इसके अंदर है juice, ठीक है। How many glasses can be filled if the radius of each glass, so छोटे glasses होंगे ऐसे, again cylindrical shape, cylindrical glasses, ठीक है। So radius of each glass is 3 centimeter and height is 7 centimeter. So वो पूछ रहे हैं कि इस जूस से, ये जो cylindrical vessel में जूस है, इस जूस से ये छोटे वाले कितने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं, ओके, हाउ मेनी ग्लासेस कैन बी फिल्ड। सो रिमेंबर, ऐसा क्वेश्चन आए कभी भी तो रिमेंबर दिस टेक्निक। क्या करना है, दिस बिग वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
ये जो छोटे ग्लास का वॉल्यूम है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस, तो करो इनटू n, नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस बी n। समझ गए, लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस बी n। सो ये n मतलब ये इस छोटी वाली मैं कितनी ग्लास यूज़ करूँगा, ठीक है, छोटे वाली जितने ग्लास यूज़ करूँगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ जूस। ओके, फॉर एग्जांपल समझो इसमें 10 लीटर जूस है, ठीक है, और आपकी जो ग्लास है इट कैन टेक 1 लीटर ऑफ जूस, तो कितनी ग्लास चाहिए, नंबर ऑफ ग्लासेस 10 चाहिए, नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी 10। तो अगर नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड भी करना है तो ये 1 डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो 1/10 विल बी 10, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ ग्लासेस। समझ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? सो दिस इज हाउ बिगर वॉल्यूम इज स्मॉलर वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, कोन्स, वॉट एवर इट कैन बी, ठीक है। सो अब इससे और एक फ़ायदा होगा जो मैं बताऊंगा अभी आपको, ऐसा लिखने से। सी, अब इसका वॉल्यूम एवरीथिंग, एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, नंबर ऑफ कुछ भी पूछा, नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, नंबर ऑफ कोन्स, ये ऐसा पूछा ना मीन्स इट इज़ ऑलवेज वॉल्यूम। यहाँ पे हम कभी एरिया नहीं करते। एरिया कब यूज़ होता है, जब हमें पूछा है स्पेसिफिकली एरिया पूछा है, या दे आर आस्किंग यू कलर करना है उसे या कवर करना है पेपर से, तो कितना पेपर चाहिए, दैट इज़ एरिया। बाकी कैपेसिटी की बात आई, जैसे जूस इसके अंदर है और जूस इसमें से इसमें पोर कर रहे हैं, तो कैपेसिटी की बात है, देन इट इज़ ऑलवेज वॉल्यूम। ओके, नंबर ऑफ ग्लासेस वाले सम्स तो हमेशा वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। सो अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो दिस आई कैन राइट लाइक दिस, सी वॉल्यूम ऑफ जार इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास इंटू n, करेक्ट। जैसे भी ये डायग्राम्स वगैरह बना के मैं दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं होती, दिस इज जस्ट फर्स्ट टाइम इफ वी आर डूइंग, दैट इज वाई आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम्स, नेक्स्ट टाइम से मैं भी ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ जार मीन्स पाई, इस जार के रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच, ओके। वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यू कैन इवन टेक एच डिफरेंटली, इसका कैपिटल एच ले लो, इसका स्मॉल एच ले लो, इंटू एन, ठीक है। अब देखो दे आर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पाई पाई डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पाई और पाई हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। रेडियस इज कैपिटल आर इज 6, सो 6 इंटू 6 इंटू हाइट इज 35 equals, here for the glass radius is 3, so 3 into 3 because r square है and height is 7 into n, these numbers will go down, 7 1s are 7 5s are 3 1s are 3 2s are 3 1s are 3 2s are 2 into 2 4 4 into 5 20, so n is 20, that means 20 glasses will be required, 20 glasses can be filled by the amount of orange juice which is present in the jar। समझ गए? These type of sums come in exam for 3 marks, very simple sums। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे मेल्टिंग का, मीन्स ये जार है, इसको मेल्ट किया और छोटे छोटे ग्लासेस बनाए, तो कितने ग्लासेस बनेंगे, दिस मीन्स द सेम, दैट बड़े वॉल्यूम है तो छोटा वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। मतलब इसे मेल्ट किया और छोटे छोटे ग्लासेस बनाए, जैसे क्ले है, आपके पास बहुत सारा क्ले है, उस बहुत सारे क्ले का वॉल्यूम आप देखोगे, ठीक है, फिर उस क्ले को आप डिवाइड करोगे, छोटे छोटे ग्लासेस बनाओगे उस क्ले से, करेक्ट। यू व्हाट आर यू डूइंग, वॉल्यूम ऑफ क्ले इज सेम, बस खाली छोटे छोटे ग्लासेस बनाओगे एंड देन उसको नंबर ऑफ ग्लासेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर मेल्टिंग का क्वेश्चन पूछा तो भी ये सेम चीज़ होती है। अभी आने वाला है क्वेश्चन आगे, लेट्स सी। फर्स्ट अभी 5th क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अ बिल्डिंग हैज़ 8 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स। बिल्डिंग में पिलर्स है 8 सिलेंड्रिकल पिलर्स, लेट्स से दिस इज द बिल्डिंग, समझो ये बिल्डिंग है
और समझो यहाँ नीचे पिलर्स है। देखे होंगे आपने बिल्डिंग में आपके नीचे पिलर्स होते हैं, पार्किंग में वगैरह, एनी प्लेस ऐसे पिलर्स हैं नीचे, ठीक है। सो देर आर बिल्डिंग हैज़ 8 cylindrical पिलर्स ऑफ रेडियस 0.5 मीटर्स। सो यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस इज 0.5 मीटर्स, height is 6.3 meters. If these pillars are to be painted at a rate of 15 per meter square, what will be the cost of painting? मुझे इन पिलर्स को पेंट करना है ऐसे, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मुझे पिलर को पेंट करना है तो मुझे एरिया लेना है, एरिया। बट मैं कौन सा एरिया लूँ? शुड आई टेक कर्व्ड सरफेस एरिया और शुड आई टेक टोटल सरफेस एरिया? What is the difference between curved surface and total surface area? Curved surface means only this part, ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है, ये वाला पार्ट। सी, तो मैं बता रहा था दैट दीज पिलर्स है यहाँ पे, दीज आर पिलर्स। तो मैं इसका सी एस ए लूँ या इसका टी एस ए लूँ? कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स ओनली दिस पार्ट, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया पिलर का, एंड टी एस ए मतलब ये और ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो, बेसिक इमेजिनेशन, कि जो पिलर होता है, जो उसका टॉप है और जो उसका बॉटम है, वो हमें दिखता ही नहीं है पिलर का, बिकॉज टॉप जो है उसके ऊपर तो आपने बिल्डिंग रखी है, ठीक है। बॉटम जो है पिलर का, दैट इज इन द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर होता है वो, ठीक है। तो जो पिलर होता है, दिस इज़ अ पिलर, तो टॉप तो ऐसे बंद है बिल्डिंग के वॉल से, बिल्डिंग के, और बॉटम जो है वो ज़मीन पे है। तो इन दोनों पार्ट पे तो कलर होगा ही नहीं पिलर के, कि पिलर को ऐसे बाहर निकाल के आप नीचे कलर तो नहीं करोगे, करेक्ट। पिलर तो फिक्स है ऐसा। तो पिलर में अगर कलर करना है तो सिर्फ उसका कर्व्ड पार्ट ही कलर होगा। कैन यू इमेजिन? पिलर का सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही कलर होगा। पिलर का भी ऐसा तो नहीं होता कि ऊपर से कुछ नहीं है पिलर के ऊपर, सिर्फ ऐसे बना दिया शो के लिए। नो, पिलर इज नॉट लाइक दिस। पिलर के ऊपर कुछ होता है तो वो बंद होता है, और नीचे तो लैंड होता है, ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है। तो पिलर को अगर कलर करना है तो यू विल कलर ओनली द कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सी एस ए ऑफ द पिलर, ठीक है। सी एस ए क्या होगा? 2πRH, okay, and that is 2 into 22/7 into radius is 0.5 into height is 6.3, okay. So 22/7 into 5/10 into 63/10, okay. 7 ones are 7 nines are. Multiply these values. 2 into 22 into 5 into 9, you will get 1980 upon 100, 0 0 cancel, this will become 19.8। ये क्या मिला? CSA ऑफ वन पिलर। एक पिलर का एरिया 19.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। कितने पिलर्स ऐसे पेंट करने हैं? वी हैव टू पेंट 8 सिलेंड्रिकल पिलर्स, ओके। सो 8 सिलेंड्रिकल पिलर्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ 8 पिलर्स विल बी 19.8 into 8, करेक्ट। you will get the answer as 158.4, sorry, मीटर स्क्वायर होगा ये, दिस विल बी मीटर स्क्वायर बिकॉज एवरीथिंग इज इन मीटर्स। एट सिलेंड्रिकल पिलर्स। अब हमें ढूंढना क्या था? वी हैड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। कॉस्ट कैसे देते हैं? हमेशा पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट देते हैं। उन्होंने बोला है कि 15 रुपीज़ होता है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल कितना मीटर स्क्वायर है? टोटल है 158.4 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट क्या होता है हमेशा याद रखो, कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट इज रेट इनटू जितने जो भी आपको पेंट करना है, रेट इनटू यहाँ पे एरिया है, जो रेट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द कॉस्ट। सो रेट कितना है? 15 रुपीज़, और एरिया क्या है? 158 इंटू 4, ओके। मल्टीप्लाई दिस,
when you multiply this you will get 2376 rupees. So कितना कॉस्ट होगा? 2376 rupees will be the cost to paint 8 pillars. Understood? Okay, let's do one more sum quickly. क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 7 करते. 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. 7 थोड़ा सिंपल है. अ रेक्टेंगुलर सॉलिड मेटल, so there is a rectangular solid metal. rectangular solid metal का मतलब होता है cuboid. You have studied what is a cuboid in 9th standard. rectangular solid metal of side 60 centimeter, 66 centimeter and 10 centimeter. cuboid में क्या होता है? cuboid में length, breadth और height होता है. correct? so length, breadth and height ये उन्होंने दिया है 60, 66 एंड 10 सेंटीमीटर. ठीक है. दिस इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया है और मेल्ट करके क्या फॉर्म किया है? अ सिलेंड्रिकल वायर. हमेशा याद रखो व्हेन एनीथिंग इज मेल्ट ना, तो इसका वॉल्यूम, इसको मेल्ट कर दिया और इससे वायर बनाया. ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहती है. जैसे अगर आपके पास एक ये सॉलिड था ऐसा मेटल, ठीक है, आपने इसको पूरा मेल्ट कर दिया फिर इससे एक लंबा सा वायर बना दिया, बहुत बड़ा वायर बनेगा इस रेक्टेंगुलर मेटल से. तो वॉल्यूम तो सेम होगी. अमाउंट ऑफ आयन फॉर एग्जांपल इन दिस सॉलिड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ आयन इन द वायर. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू मेल्ट का क्वेश्चन आया तो वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी सेम. ओके, सो आई विल राइट हियर दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर solid will be equal to volume of cylinder. ठीक है. सिलेंड्रिकल वायर मतलब ये ऐसा होता है वायर, तो वो भी एक सिलेंडर ही होता है. पतला होता है बट एक सिलेंडर ही है वो भी. वायर इज ऑल्सो अ सिलेंडर. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड. क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच. ओके, now what is given in the question? Rectangular solid of metal 60 into 66 into 10 centimeter is melted and formed into a cylinder with radius 2 centimeters. So cylinder का radius is 2 centimeters. Find the length of the wire in meters. Find the length of the wire बोला है, मतलब ये वायर है ना, ठीक है, इसका रेडियस दिया है और ये होते हैं वायर की लेंथ. तो वायर की लेंथ इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. जब हम देखो नॉर्मली सिलेंडर इज केप्ट वर्टिकल, हमने अभी तक वैसे वर्टिकल सिलेंडर देखा है, तो ये उसकी हाइट होती है. ठीक है, लेकिन अगर मैं वायर की बात करता हूँ तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाता है. ओके, ये रेडियस है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर विच इज नथिंग बट यू कैन से द हाइट. जब इसको मैं अगर यही फिगर को इफ आई कीप इट लाइक दिस, सो ये जो लेंथ होती है ना, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो याद रखो लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट द height of the cylinder. Okay, so length is nothing but the height जो आपको फाइंड करनी है. so here length is 60, breadth is 66, height is 10 equals 22/7. all these are in centimeters. ठीक है, radius is given as 2 centimeter, 2 into 2 into h. ठीक है, let's solve this. so 60 into 66 into 10, ये 7 ऊपर जाएगा into 7 upon this 22, 2 and 2 will come in the denominator. okay, 22 ones are 22 threes are 2 ones are 2 30s are 2 ones are 2 5s are. multiply these values. 30 into 3 into 5 into 7. You will get the answer as 3150 बट इन सेंटीमीटर्स मिलेगा. ठीक है, हमें बोला है लेंथ को मीटर्स में फाइंड करो. सो सेंटीमीटर को आई विल राइट हियर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ वायर इज 3150 सेंटीमीटर्स. इसको मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100.
So this will become 31.5 meters. This will be the answer. I hope you have understood. मेल्टिंग का मतलब है इसको मेल्ट करके ये बनाया, तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. Copy this. That's it for today. The next video we'll continue with the remaining sums. Pause the video and complete this sum.